मेरी बहन मेरे भाई कितना काम किया नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। तुम्हें पता ही है ड्रिल क्या है। जितने भी अटैकर्स हैं, जिस चैनल को जो लोग देखते हैं, जो लॉयल है, भाई तुम अपनी जिंदगी में फाड़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। एक सिंपल सा गोल रख लो, मुझे बहुत अमीर बनना है, मुझे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से, अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनना है। जो भी मेरे पास अवेलेबल है और जितनी भी चीजें उसके आगे मैं पा सकता हूं वो तो पाके रखूंगा। रोक सको तो रोक लो। हार नहीं मानेंगे, परेशानियां होंगी, डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगी, लेकिन दिमाग वहीं रखेंगे कि मैं पा के तो रहूंगा। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि तुम्हें वीकली बेसिस पे पता चलता है तुम कितना फाड़ रहे हो, जो कि पूरा होता है बिकम पावरफुल सिस्टम से। पूरा सिस्टम ऐसे रच रखा है कि तुम्हें वीकली परसेंटेज मिल रही है तुम कितना उखाड़े हो, और तुम्हें बस वो बीट करते चले जाना है। अटैक मोड उठाओ, अगर तुमसे काम नहीं होता, फटके चौराहा हुई है, कोई आइडिया नहीं क्या करना है, अटैक मोड उठाओ, सारे एस्पेक्ट्स में लाइफ के कैसे फाड़ के हाथ में रख दे, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। When my daughter turned 16, I had to gift her something, you know. So I said, what do I gift? What do I gift? And I was thinking that should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? And when I discussed it with her, and I said, Sia, this is what I'm thinking. She was like, Mom, have you lost it? Yeah. Like, are you retarded? Like, you know, Crazy. I mean, are you crazy? And I said, Sia, think about it. How many mothers will come to their daughters and say, you know what, why don't I give you something, and why don't you experiment, you know? Woman, So this is crazy. yeah, so I was Very like, cool. yeah, I mean, what my mom didn't do with me, Yeah. I don't want to do that, not do that with my daughter, right? I want her to experience everything. This guy is saying it's very cool. Maybe he hasn't registered or processed it, but we are talking about a 16-year-old. Guy shouldn't be like, that's cool. Maybe you should just be neutral. Just be neutral. We're talking about a 16-year-old. Just listen, listen, and be like, okay, not my child. We're talking about a nabalik bacha. The parent is speaking and they're expressing, and you're in a podcast. Of course, they're going to talk about stuff like that. So, okay. In his mind, maybe he has to approve or give approval to any idea जो कि close to be feminist, progressive, liberal है. Should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? And when I discussed it with her, and I said, Sia, this is what I'm thinking. She was like, Mom, have you lost it? Yeah. Like, are you retarded? Like, you know, Crazy. I mean, are you crazy? And I said, Sia, think about it. How many mothers will come to their daughters and say, you know what, why don't I give you something, and why don't you experiment, you know? Woman, So this is crazy. yeah, so I was Very like, cool. yeah, I mean, what my mom didn't do with me, Yeah. I don't want to do that, not do that with my daughter, right? I want her to experience everything. And a lot of women go through life without experiencing the pleasures of it, right? Yeah. So why Or be having in had that an orgasm. Yeah, so why be in that situation? And today I think my daughter is 19 and she appreciates the fact that at least I had that thought, and she respects me for that. So that's amazing. I think that's wonderful. The male feminist. The vibe from the guy. This is just my note. And a काफी kindness, प्रेम भाव से आ रहा है note. This is a mother talking about her child. So I understand from the point of view of the mother that she's talking about her daughter. Whatever she's saying, that's a mother speaking. Should not be saying that's very cool. जब हम बात कर रहे हैं 16 साल के बच्चे, एक नाबालिग के बारे में, about sex. Maybe just a simple note जहाँ पे हमें हो जाना चाहिए कि yeah, maybe this is where I just listen and I'm like, okay, interesting. Central idea से start होते हैं. Just because मेरी मम्मी ने नहीं किया, इसलिए मैं करना चाहती हूँ. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रेंज ऑफ चीजें मिल जाएंगी जो पुरानी जनरेशन ने नहीं करी. दैट कैन नॉट बी द क्वालिफायर कि इन्होंने नहीं किया इसलिए मैं करना चाहूंगा. आई थिंक हम करना क्या चाह रहे हैं, उसका कंटेंट क्या है. यानी कि अगर मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूं अपने बच्चे को सेक्स टॉय दूं, मे बी बस उसको देखो ये जो बात बच्चे ने रिएक्शन दिया उसी पर्सपेक्टिव से ये मैं कर क्या रहा हूं या मैं बोल क्या रहा हूं. उसको ये नहीं देखना चाहिए कि एक्चुअली मेरे माता पिता ने क्या किया जो कि सेक्सुअली लिबरल या प्रोग्रेसिव होता, ओ तो मुझे वो करना है, तो वो दिखने के लिए मैं क्या कर सकता हूं. तो मैं जानबूझ के एक्सट्रीम आइडियाज फेंकूंगा या बोलूंगा क्योंकि मुझे ये दिखना है. दैट्स लाइक सेइंग कि आई एम वेरी प्राउड जो होता है ना. आई थिंक मैं कभी न्यूज स्टोरी पढ़ा था, हॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस थी जिसके 4 या 3 बच्चे थे और तीनों के तीनों ट्रांसजेंडर हैं. एंड दैट्स देयर आइडेंटिटी कि मेरे सारे बच्चे ट्रांसजेंडर हैं, जो कि सिंपल अगर स्टैटिस्टिकली बायोलॉजी के पॉइंट से भी देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग, आई थिंक कई बार बहुत सारे लोग कुछ दिखना चाहते हैं अपने आप में भी, अपने आप को मनवाने के लिए. आइडियोलॉजिकली मैं ऐसे देखा जाऊं, समाज में ऐसा देखा जाऊं, मैं तो बहुत ओपन माइंडेड हूं. मैं तो इतना ओपन माइंडेड हूं कि मैंने एक बार ये किया, ये तो बहुत ही ओपन माइंडेड हैं, इतने प्रोग्रेसिव ख्याल के इंसान हैं. तो आई थिंक ऐसे लोग मोर सो वो चीजें कर रहे हैं ताकि हम वैसे दिखें, rather than एनालाइजिंग द कंटेंट ऑफ आप क्या कर रहे हो. प्यूबर्टी के बाद हर व्यक्ति दुनिया में अपने आप को खोजने की जर्नी में निकलेगा.
उसमें से एक जर्नी सेक्सुअल भी होगी कि हम सेक्सुअली कौन हैं, उसको भी हम जानने लग जाते हैं। ये जर्नी सबको पता है, हर माता पिता को पता है कि भाई 14-13 में शुरू हो गई है एक बच्चे की। हेल्थी चीज हो सकती है कि आप एक डोर ओपन रखो कि अगर कोई भी कभी भी बात करनी है तो हम कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंफ्यूजन के बारे में, कोई भी कुछ भी बात हो, बच्चे को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वो दरवाजा नहीं खुला जहां पे अपने माँ बाप से कोई भी कितनी भी प्राइवेट चीज हो, चाहे उसको सीमिंगली कितनी भी एम्बैरेसिंग लगे, चाहे कोई भी इश्यू हो, कोई भी चीज वो अगर फेस कर रहा है जो सेक्सुअल नेचर हो सकती है, हो सकता है स्कूल में कोई चीज चल रही है बट उसमें सेक्सुअल कुछ नेचर है, बुलिंग हो सकती है, इश्यूज हो सकते हैं, सेक्सुअल एक्सप्रेशन हो सकता है, आइडियाज हो सकते हैं, सपने हो सकते हैं, कुछ भी हो यार, मेडिकल इन नेचर हो, साइकाट्रिक इन नेचर हो, कुछ भी हो। पेरेंट्स ने नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऐसी बनाई है जहां पे हम कम्युनिकेशन को बहुत बढ़िया मेंटेन किए हुए हैं। बच्चे को यह फील नहीं होता कि मैं एक अथॉरिटी से बात कर रहा हूं जहां पे मुझे कंप्लीटली नई टेम्पलेट बुननी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी कोई टेम्पलेट कम्युनिकेशन की है ही नहीं जिसमें मैं ये कॉन्वर्सेशन इस इंसान से कर सकता हूं। बहुत ही लाइट वर्जन लेते हैं इसका, एक बहुत ही लाइट वर्जन इसका हो गया कि फॉर एग्जांपल चू वर्ड हो गया, रुपया के साथ जो वर्ड राइम करेगा, ये ऐसी चीज नहीं है जो आपके पिताजी ने ना बोली है ना वो सोची है। हाँ, मे बी इन सर्टेन सिचुएशंस जहां पे एक्चुअली में अप्लाई होता है, नीडेड है, मैं बोल सकता हूं और मेरे पिता पगला नहीं जाएंगे कि ये क्या बोल दिया। ये बहुत लाइट वर्जन हो गया उसका। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ये टेम्पलेट भी नहीं होती जहां पे हम ये तक बोल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, हमने कितनी लैडर्स, कितनी ब्रिजेस, कितनी डोर्स अपने बच्चों के साथ बना रखी है जो कि नेसेसरली हमेशा ओपन करने की जरूरत नहीं है। व्हेन नीडेड वो अवेलेबल होनी चाहिए। ये है हेल्थी पेरेंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं। आपकी बेटी है, बेटी की कोई फ्रेंड है, बेटी की फ्रेंड के साथ कुछ चल रहा है जिसको लेकर उसको कुछ आंसर चाहिए, लेकिन उसको आंसर्स मिल नहीं रहे लेट्स से। तो आपकी बेटी आपके पास, मम्मी या डैड किसी के पास भी आके बात कर सकती है, क्योंकि आपने वो डोर्स इतनी गजब लेवल पे मेंटेन रखी हुई हैं कि वो कहे कि मेरी फ्रेंड है, अगर वो कंफर्टेबल है तो नाम बता सकती है, उसकी लाइफ में ये चल रहा है, उसको क्या करना चाहिए, मुझे कुछ मैच्योर एडवाइस दो, मुझे कुछ पर्सपेक्टिव्स दो, उसको ये चीज कैसे डील करनी चाहिए। उसका बॉयफ्रेंड है जो एक्चुअली उससे यही सब चीजें करने को कहता है, मे बी हमारे पास कोई है नहीं बड़ा, हमें क्या करना चाहिए। यूजुअली क्या होगा, एक 15 साल की, 16 साल की लड़की या इवन लड़के ओल्डर लोगों के पास जाते हैं इन एडवाइस के लिए, बट होगा, हो सकता है कोई भैया के पास जाएं, हो सकता है वो किसी दीदी के पास जाएं। ऑब्वियसली आपका बच्चा कभी जिंदगी में आपसे दोस्त की तरह बात नहीं करेगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप माँ बाप हो और आपको वो होना भी नहीं चाहिए। आपको टू अ डिग्री ऑफ अथॉरिटेटिवनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रिक्टनेस भी, बाउंड्रीज भी, वो भी आपके रोल्स हैं। जहां ये रोल्स आ गए कि एक सर्टेन लेवल ऑफ अथॉरिटेटिवनेस भी है, तो वो दोस्ती के विपरीत हो गया। दोस्ती के अंदर रूल फॉलोइंग, स्ट्रिक्टनेस, ये सब चीजें नहीं एग्जिस्ट करती। सर्टेन लेवल क्या, जीरो। दोस्त है वो व्यक्ति जिसके साथ हम कंप्लीटली अनइनहिबिटेड हैं। नॉन वायलेशंस, रूल वायलेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन, क्लास में ये नौटंकी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसकी बात कर रहे हैं। ये इंसान मेरे को स्निच नहीं करेगा। दोस्त कंप्लीट ऑपोजिट है माँ बाप का। तो जितने माँ बाप भी कोशिश करते हैं ना कि मैं बेस्ट फ्रेंड बनूंगा अपने बच्चे का, पहला आपका वो रोल ही नहीं है। आपका रोल होना चाहिए कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं जिसके साथ आप बात कर सकते हो कोई भी। तुम टेंशन नहीं लो, हम तुम्हारी साइड में हैं, हम तुम्हें सपोर्ट ही करेंगे। तुम अगर मेरे घर आते हो, कहते हो आज सोच रही हूं मैं, आज सोच रहा हूं मैं ये खुराफात करें, और पेरेंट कह रहे हैं जाओ करो, ऑब्वियसली नहीं भाई। तभी तो सारी खुराफात इंसान माँ बाप से छुपाता है। अगर पेरेंट्स ने ही कह दिया कि तुम जाओ नॉर्म्स वायलेट करो सारे, तो भाई जब पकड़ा जाएगा वो इंसान और वो अथॉरिटी कॉल करेगी पेरेंट्स को, आपका बच्चा सारे रूल्स या नॉर्म वायलेट कर रहा था, तो बच्चा कहेगा मेरे माँ बाप ही तो कह रहे थे करो। अगर माँ बाप इनेबल कर रहे हैं कि तुम करो, जो करना है तुम्हें करो, मजे करो, तो मजे के अंदर जो नुआंस है और कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसके अंदर हार्मफुल बिहेवियर्स आ जाते हैं, लेट्स से ड्रग्स लेने की बात हो गई, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, उनको सुलझाएगा कौन, उनको बाउंड्स में कौन लाएगा, कौन होगा जो स्ट्रिक्टली बताएगा कि ये बिहेवियर इतना बड़ा, फिर एक सर्कल आता है जो हम जहां पे क्लियरली कह रहे हैं बहुत बड़ा नो है। तो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की भी बहुत जरूरत होती है। बच्चे कौन हैं? जिनका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, जिसके अंदर भावना फट रही है, ब्रेन हाई इन इंपल्सिव थिंकिंग है, बहुत हाई इंपल्सिविटी है, रिस्क टेकिंग बहुत हाई है, स्पेशली टीनेजर्स में बहुत हाई रिस्क टेकिंग होती है। वो मोमेंट्स है जहां पे आपको एक्चुअल में, इसीलिए सेक्स एजुकेशन क्यों वरना कही गई है, बच्चों को सिखानी चाहिए। आइडिया क्या है उसके पीछे? आइडिया ये है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएंगे। वर्ड क्या, वापस आओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कह रहे बच्चों से स्कूल में कि सेक्स एजुकेशन जाओ करो, तुम लोग मजे करो, पागल हो गए हो क्या? मैं ये नहीं कह रहा, ये जो भी हैं ये वो पेरेंटिंग नहीं करी जहां पे इन्होंने डोर्स, चैनल्स ओपन नहीं रखे अपनी बेटी के साथ। I'm pretty sure कर रखे हैं, बट यहाँ पे मैं इनसे बहुत हार्ड डिसएग्री मारूंगा, बिकॉज यहाँ पे जितने लड़के हैं, एक बात बताओ, आपके पिताओं को सबको पता है कि भाई 13 के बाद जब तुम्हारे कमरे में कुंडी लगी है
या जब तुम शावर कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है मैं सक्सेसफुली, किसी को पता नहीं चल रहा मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारे पिता को हमेशा पता है। ये है एग्जाम्पल इक्विवेलेंट टू कि पिता तुम्हारे सडनली फोन पे क्लिप भेजें कि बेटा ये क्लिप चेक कर, इस पे हिला। कौन लड़का है? इवन तो अगर तुम्हारे पिता जोक मार चुके हैं, तो पकड़ चुके हैं, लेट्स से एक बार उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा चल ठीक है सब करते हैं बेटा। ये हुआ पेरेंट हु अंडरस्टैंड्स प्यूबर्टी क्या होती है, एडोलेसेंस क्या होता है, यंग अडल्टहुड क्या होता है, कि हम चैस्टाइज नहीं कर रहे हैं आपको। इसके बियॉन्ड अगर मैं कहूं बेटा सुन ये वाली पॉर्न स्टार देखिए क्या, ये नाम देख बेटा, इसका चेक कर, कोई बेटा नहीं है इस दुनिया का जो कहेगा ये बहुत कूल बाप है, क्योंकि वो आपके पिता हैं। माँ बाप और बच्चे में एक डिफरेंस है, वो आपके माता पिता हैं। इसीलिए रिसर्च में चाहे माँ बाप कितने क्लोज हों, जो भी हों, टीनेज के ईयर्स के बाद, एडोलेसेंस के ऊपर बच्चे किससे सीखते हैं बिहेवियर, वो पूरा शिफ्ट हो जाता है माँ बाप से। बच्चे माँ बाप की सुनना बंद कर देते हैं। चाहे तुम कितने कूल हो जाओ, चाहे कितने दोस्त बन के भेस में आप कहो कि सुनो हम तो दोस्त हैं, लेकिन सही बिहेवियर ये होता है, वो नहीं सुनेंगे। बच्चे सुनने लग जाते हैं। सबसे बड़ा इंफ्लुएंस है पीयर्स, यानी बच्चे सीखते हैं अपने उम्र के दूसरे लोगों से। इसीलिए आप सबने अपने बचपन में डायलॉग सुना होगा कि ये लड़का बिगाड़ देगा तुमको, तुम्हारे दोस्त हमको पसंद नहीं है, वो हमको पसंद नहीं है। तुम्हारे माँ बाप क्यों सडनली तुम्हारे दोस्तों को अटैक कर रहे हैं, नेम कर रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है हमारे हाथ से कंट्रोल चला गया, ये हमारी नहीं सुनता। और वो तुम्हारे में बिहेवियर चेंज देख रहे हैं बहुत भयंकर लेवल पे, जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो चीजें उन्होंने तुम्हें नहीं दी हैं। तो वो एट्रीब्यूट करते हैं दूसरे लोगों को। और दूसरा बहुत बड़ा मार्कर क्या है जिसे तुम सीखते हो? ऑनलाइन रोल मॉडल्स, सोशल लर्निंग। सिंपल, बच्चे एडोलेसेंस पीयर्स में ही सीखते हैं। तो यानी कि वो आपको बड़ों की तरह देखते हैं। लाइफ में हैव फन, या फिर सेक्स करो, या फिर सेक्सुअली एक्सप्लोर करो। दिस इज इस एडवाइस के पीछे मैं प्लीज कहूंगा थोड़ी सी रिसर्च कर लो। मे बी अपने बच्चे को प्रोमिस्क्युइटी, सेक्सुअल पथ पे जाने से पहले रिसर्च कर लो। एडोलेसेंस में आपकी बेटी अगर 16 साल की है और आप उससे अगर कह रहे हो, लेट्स से 18 साल की बात करते हैं, अगर आप उससे एडवाइस दे रहे हो कि जाओ 18 साल के बच्चों के साथ, लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ तुम सेक्स कर सकते हो, तो एक बार स्टडी करो कि जो टीनेज ईयर्स में सेक्स होता है वो उसका कंटेंट क्या है। डरावना है, सेक्सुअल कोवर्जन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ट्रॉमा आपको मिलेगा, कंसेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली बात कर रहे हो बेवकूफों की। पहला, आपका ब्रेन डेवलप हुआ नहीं है, आप इंपल्सिविटी में बहुत हाई हो, रिस्क टेकिंग में बहुत हाई हो। इंपल्सिविटी में हाई होना मतलब क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल में बहुत कम हाई होना। कुल मिला के बंदरों के साथ, हाइपर एक्टिव सेक्सुअल बंदर। देयर इज अ ह्यूज चांस, एंड ये सब रिसर्च बेस्ड है मैं जो बात कह रहा हूं, आपका बच्चा हर्ट हो सकता है। देयर इज अ ह्यूज चांस उनका एक्सपीरियंस बहुत खराब हो सकता है, इवन तो आपने बहुत उनको सेक्सुअली रिस्पॉन्सिबल बना दिया, जो भी बना दिया है, लेकिन वो जिस इंसान के साथ कर रहे हैं, भाई हो सकता है वो कुछ निकम्मा नालायक निकल जाए। बच्चों में अच्छी खासी सेक्सुअल कोवर्जन पे रिसर्च है। काफी हो सकता है आपके बच्चे की या एक लड़की की बाउंड्रीज हो कि मेरे को ये मैं करना चाहता हूं, ये सब चीजें मैं नहीं करना चाहता। बट काफी केसेस में लड़के कोवर्स करते हैं, यानी कि मुझे करना है, और वो काफी चीजें तुमसे करवाना चाहेंगे जो तुम्हारा मन नहीं है करने को। देखो, हर कोई चीज जो सुनने में और पेपर में बहुत लिबरल और प्रोग्रेसिव लग रही है ना, उसको प्लीज रियलिटी में पुट करो कि होमो सेपियंस का बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो कैसी है। एंड ये है खूबसूरत ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं बात जो कर रहा हूं उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है, विदाउट बायस मैं स्टडी करना चाहूंगा। मेरी एडवाइस प्रैक्टिकल लाइफ में जब पुट करता हूं तो कितना हार्म कॉज करती है, कितना बेनिफिशियल है इस इंसान के लिए लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ में। बहुत हद तक चांस है कि आप वो एक्सपीरियंस काफी हद तक रिपीट करोगे, जिसकी वजह से हो सकता है जो हम जिस चीज को बड़ी हेल्थी ले रहे हैं, हमें लग रहा है बहुत कूल चीज है, वो हो सकता है बहुत ही घटिया, खतरनाक, सेल्फ हार्मिंग पैटर्न्स में इंसान को ले जाए, जहां पे इंसान बहुत ही डिसफंक्शनल रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा है क्योंकि 18 में किसी के साथ बहुत गंदा एक्सपीरियंस हो गया था। सेफ सेक्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स को डिमोनाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट रिसर्च के हिसाब से लोग कैसे बिहेव करते हैं, इसके हिसाब से सेफ्टी क्या होती है, क्या उम्र में कैसे बिहेव करना चाहिए। यानी कि चौकन्ने बनो अपनी जिंदगी में, समझदार बनो। 1970s में लोग इंडिया में ओपनली सब सेक्स नहीं करते थे, Therefore, क्योंकि 1970s में नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज कोई डेट में या किसी पीरियड में एक चीज एग्जिस्ट नहीं करी थी, इसका मतलब ये थोड़ी वो चीज के कोई प्रोज एंड कॉन्स नहीं है, वो चीज ही अच्छी हो गई, वो एब्जॉल्व हो जाती है ऑफ एनी प्रैक्टिकल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। सेक्सुअल एजुकेशन का एक सबसे बड़ा जो गोल होता है या एम होता है वो है सेक्सुअली रिस्पॉन्सिबल होना, सेक्सुअली अवेयर होना। ये नहीं कि बस सेक्स करो, ऐसे सेक्स को प्रेजेंट करना जैसे उसके कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते ही नहीं है। सेक्स में नेगेटिव आउटकम्स नहीं हो सकते। हम बात क्या कर रहे हैं? 35 साल के 40 साल के लोगों की बात नहीं कर रहे ना, आप कह रहे हो 18। तो 18 साल के बच्चे बिहेव कैसे करते हैं इन जनरल, कितना सेफ वे में बिहेव करते हैं, कितने रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कितने मैच्योर होते हैं, कितने सेंसिबल होते हैं, प्लस उस बिहेवियर का लॉन्ग टर्म आउटकम्स क्या होता है। अगर
18, 17, 16, 19 इन सब में नेगेटिव बहुत ज्यादा चीजें हो जाएं, ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जो इंसान को बहुत गंदे लगे, करने के बाद बहुत रिग्रेट हो, जो होता है तो उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सोचना जीवन में इंपॉर्टेंट है। आप जब 17 के थे तो आप पॉर्न भी देख रहे थे, आप कोशिश भी कर रहे थे गर्लफ्रेंड मिले, आप फैंटेसाइज भी कर रहे थे एक्टिवली। मेरी बात समझ लो, हर बच्चा जो चीजें उसको एक्साइटिंग लगेंगी छुप के कैसे भी हम करते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर होता है कि इंसान एक नॉर्म्स, रूल्स, ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं वो हम एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। दूसरा, हम अपने पीयर्स क्या कर रहे हैं उससे बहुत इंस्पायर होते हैं, अपने ग्रुप से। हमारे इन्फ्लुएंसर्स हमें क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए, हम उस पर बहुत सोचने लग जाते हैं। एक तरफ हमें मानना पड़ेगा कि बच्चे करेंगे खुराफाते, वो नेचर है, हम सब ने करी है, हम सबकी 50 कहानियां हैं। और मैं यहां पे सिर्फ सेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, हर चीज की बात कर रहा हूं। आपने सिगरेट भी ट्राई करी, आपने गुटखा भी खाया, आपने दारू भी पिया, आपने एक बार होली में ये भी खाया था। तुम सब बताओ तुम्हारी पहली उम्र क्या थी। तो हम क्या कर रहे हैं, खुराफाते ही तो हैं। तो जो चीजें हमें पेश करी जाती हैं बिग नो, उनमें एक चुल होती है एक्सपेरिमेंट करने की। एक अच्छी पेरेंटिंग ये होती है जहां पे हम समझते हैं कि ये साइड एग्जिस्ट करेगी यूथ में, यस, बट बिना उस चीज को इतना बड़ा बनाए। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या होता है, नेगेटिव आउटकम्स क्या होते हैं, हम एजुकेट करें यार। हम गाइड हैं अपने बच्चे के, तो हम उनको गाइड कर सकते हैं कि देखो इस उम्र में ये सारे बिहेवियर्स हैं जो लोग ट्राई करेंगे, फॉर एग्जांपल अल्कोहल। लेकिन एज अ पिता, एज अ माँ, ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से मैंने कभी नहीं किया, मैं नहीं हाथ रखना चाहूंगा, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। और समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जहां पे इंसान को लॉजिकली समझ में आए कि हाँ यार बात मैं समझ सकता हूं, मैं देख सकता हूं। वो प्रेम से आना चाहिए, कंपैशन से आना चाहिए, और वो आना चाहिए विद द इंटेंट टू एजुकेट। फॉर एग्जाम्पल, दारू ब्रेन के साथ क्या करती है, क्यों एडिक्शन होता है, पहले हम खुद से पढ़ें इस चीज को लेके, फिर समझाएं बच्चे को कि बेटा ब्रेन में ये चीजें होती हैं, जब तुम दारू का सेवन करते हो तो ये लेवल पे ये चेंजेस आते हैं। प्लस लॉन्ग टर्म में पता क्या होता है, कैसे दारू ब्रेन केमिस्ट्री तुम्हारी चेंज कर सकती है और एडिक्शन हो सकता है। एडिक्शन के बाद क्या क्या होता है लोगों के जीवन में। मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है, सबसे बेस्ट आर्गुमेंट क्या है दारू ना पीने का, मेरा सबसे गजब आर्गुमेंट क्या है गांजे को ना फूकने का। पहला एज अ पर्सनल आर्गुमेंट, इमोशनली जो भी आइडियोलॉजिकल आर्गुमेंट हो सकता है कि मुझे क्या लगता है। अब जो भी आपका आर्गुमेंट होगी, भाई मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को अपनी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे पसंद है भाई मैं सोच पाऊं। कभी कभी जिंदगी में वो चीज अलग होती है, बट उस चीज के गामोर मत बनो, कुछ भी हो। दूसरा हो गया साइंटिफिक आर्गुमेंट। साइंटिफिक लिटरेचर इतनी डरावनी है वीड पे, अल्कोहल पे, एंड इवन सेक्स में हाइपर लिबरल दिखने में। पता है प्रॉब्लम क्या होती है, हम दिखने के चक्कर में कभी चेक ही नहीं करते कि बहुत सिंपल लॉजिकली देखा जाए हर चीज का प्रो है, हर चीज के कौन है। हम ऐसे ऐड करते हैं कि चीज होली संपूर्ण रूप में अच्छी ही है। अरे मजे करो ना। दारू के भी बहुत सारे सोशल फंक्शंस हैं, ग्रुप बॉन्ड में, दोस्ती बनने में। भाई एक रीजन है ना कि न्यू ईयर पे खुलती है, एक रीजन है जब तुम्हारे जितने भी यूनिवर्सिटी के लोग थे जो जब भी मिलते हो तो बियर से लेके कुछ ना कुछ चलता है। क्यों? क्योंकि हेल्प करता है सोशल बॉन्डिंग में। फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी में अक्रॉस कल्चर्स में रहा है वो तत्व, एक ग्लू रहा है। तो उसके फायदे तुम कह सकते हो सोशल ये भी हैं, बट अब उसके नुकसान भी तो देखो ना। सिमिलरली ये लॉजिक, सिंपल लॉजिक कि हर चीज के फायदे नुकसान तो आपको मिल सकते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कोई भी चीज के नुकसान नहीं है और हम उसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हमें लिबरल ओपन माइंडेड दिखना है और मजे को हमें दिखाना है कि मैं कितना ओपन माइंडेड पेरेंट हूं, कि मैं तो तुम्हें जैसे दूसरे पेरेंट्स, कुछ हो सकता है हाइपर अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, यानी कि जो ऑटोनॉमी ही मार दे रहे हैं, हम जो कहेंगे वही सही है। तो मैं उसका ऑपोजिट क्या होऊंगा कि तुम कुछ भी करो। भाई ये भी तो फिर काइंड ऑफ एक दो एक्सट्रीम्स में आ गए ना हम। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जो ऑटोनॉमी ही छीन लेती है इंसान से, यानी कि माता पिता जो कह रहे हैं हमारे अनुसार अच्छा बच्चा, काबिल बच्चा ये होता है, तो जब तुम्हें ये बोला जाए तुम्हें वो करना है। एक वो हो गई। उसका ऑपोजिट हो गया कि जो चीजें सोसाइटी में सोशली फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम सप्रेस करने को कहा गया है, ना करने को कहा गया है, फ्राउन किया जाएगा जिन पे, तो वो तुम पूरा करो। क्योंकि मैं लिबरल और बहुत हाइपर प्रोग्रेसिव या बहुत ही ओपन माइंडेड देखना चाहता हूं, तो मैं कह रहा हूं तुम्हें फुल छूट है। इसमें भी प्रॉब्लम है ना। इंटरेस्टिंग दो, वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी आप लोग काम करिए भाई,